Okay, so today we will start with a quick recap of what we have seen in the last session. तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. So first of all, we have to go back to something called as self-inductance. Because the topics are related, I will just quickly revise. The idea was very simple. आपके पास एक coil है, एक ही coil है. That's it. You do not have any other coil. Then you have a source of EMF connected to this. मतलब बैटरी है बेसिकली यहाँ पे. एंड यू हैव अ की. जैसे ही आप की को क्लोज करोगे देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. और आपको पता है कि करंट की वैल्यू कभी भी डायरेक्टली मैक्सिमम नहीं होती है. इट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम वैल्यू. तो जैसे ही करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा. तो इन दिस केस द फ्लक्स linked with the coil is changing and hence EMF is induced. And in this case एक ही coil है, कोई और coil था नहीं हमारे पास. तो इस coil में करंट चेंज हुआ, इसी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसी का फ्लक्स चेंज हुआ और इसी का फ्लक्स खुद के साथ लिंक था. एंड हेंस EMF is induced in the same coil due to the change in the current in the same coil. इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the coil due to change in current in the same coil. फिर अगर आपको याद होगा तो flux was proportional to current in the coil. तो flux is equal to Li, where L is called as self inductance or coefficient of self induction, right? तो EMF कितना induce हुआ that we have to see. So EMF induced is, if you remember, it is minus d phi by dt. So minus d dt of Li. So L constant है तो बाहर आ जाएगा minus L di by dt. So this is what you will have, minus L di by dt. ये आपको मिल गया induced EMF E. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे मतलब ओनली मॉड वैल्यू, तो यू गेट L di by dt. नेगेटिव साइन छोड़ दो. Therefore L equal to E upon di by dt. So self-inductance is defined as the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil, right? And then after this we saw what is the self-inductance of a solenoid. तो इसके बाद हमने inductance, self-inductance of a solenoid ये topic start किया था, if you remember. And we have derived equation for self-inductance of a solenoid. तो I am assuming कि आप लोगों को solenoid क्या होता है पता है. And we have already done this in the last session. It is just a revision. तो हमारे पास एक solenoid था. Solenoid is a core. इस core के ऊपर you have windings. So you have a core and इसके ऊपर हम windings करते हैं. So you have windings on this, something like this. तो ऐसे windings है. Good. मान लो इसका जो लेंथ है, the length of this is L, area of cross section is A. Imagine there is a current I flowing through this, right? Total number of turns here are N. Total number of turns in the solenoid are N. So as you know, what do you know is from here total flux is equal to Li. Total flux मतलब total flux linked with all the turns is L into I. Then मान लेते हैं, imagine हर एक टर्न के साथ flux linked is phi suffix b. तो phi is the total flux linked with the solenoid and phi suffix b is the flux linked with each turn. और total turn कितने हैं? कैपिटल N. तो आपको मिल जाएगा total flux N into phi b. This is equal to Li, right? Equation number 1. This is what you need to know. Clear यहाँ तक? Then अगर आपको याद होगा तो small n is number of turns per unit length.
बी केयरफुल, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एल, कैपिटल एल लिख मत देना क्योंकि कैपिटल एल होता है इंडक्टेंस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इफ यू डू दैट. ओके, so this is what you have, n by L. Therefore, n equal to small n into L. Therefore, n phi b, n capital N is small n into small l, phi b is b bar dot a bar. और आपको याद होगा कि b bar dot a bar is b a cos theta. और आपको ये भी याद होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे, जब आप करंट पास करते हो सोलेनोइड में से, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इट इज अलोंग द एक्सिस, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बार. और मैंने कॉइल का अगर एक टर्न अज्यूम किया यहाँ पे, दिस टर्न, इसका जो एरिया एलिमेंट है इसका डायरेक्शन भी है सेम, तो एंगल इज 0, तो एंगल इज 0, तो कॉस ऑफ 0 इज 1, तो एन एल बी ए, राइट. और आपको ये भी याद होगा 10th नंबर चैप्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस ये डिराइव किया है, एंड दैट वाज, इफ यू रिमेंबर, म्यू 0 एन आई इंटू ए. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. तो आपको मिल गया एन फाई बी इक्वल टू एन एल म्यू 0 एन आई ए, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड एन फाई बी था, राइट हैंड साइड भी एन फाई बी था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको ये मिल गया था. फ्रॉम 1 एंड 2 यू हैव एन एल म्यू 0 एन आई ए इक्वल टू एल इंटू आई. आई और आई कैंसल, करेक्ट. तो एन इंटू एन इज एन स्क्वायर, एल म्यू 0 ए, और जो स्मॉल एल था इसको हम ले गए डिनोमिनेटर में, करेक्ट. क्लियर यहां तक. तो ये आपको मिल गया इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड, म्यू 0 एन स्क्वायर ए. So this is how we have derived inductance per unit length of a solenoid. Good. And last thing that we saw in the last session was, दो टॉपिक्स को मैंने कंबाइन कर दिया था. If you remember, we had two different topics. एक तो energy of circuit, energy of the circuit, और दूसरा था, remember, energy stored in magnetic field, energy stored in magnetic field. हमने इन दोनों टॉपिक को कर दिया था कंबाइन, क्योंकि ये दोनों टॉपिक, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम टॉपिक, दे आर एग्जैक्टली सेम, राइट. सो द क्वेश्चन वाज, वी हैव अ सर्किट जिसमें आपके पास एक कॉइल है, आपके पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी है, यू हैव अ की के ओवर हियर. देन एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप की को क्लोज करते हो, तो इन दिस केस करंट abruptly suddenly 0 से मैक्सिमम नहीं होता है, it increases in small steps, 0 फिर 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 फिर 0.4, then it goes to maximum value. So when the current in the coil changes, magnetic field of the coil changes, and hence flux of the coil also changes, and hence there is EMF induced, मतलब there is current induced. और वो जो करंट होता है वो ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो ये जो व्हाइट एरो से मैंने बताया है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल करंट, और जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट. तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो इंड्यूस करंट है ये ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है, मतलब ये ओरिजिनल करंट के मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है. हाउ कम? एज यू ऑलरेडी नो, if for the original current, if this is north pole, this is south pole, because you already know whenever current passes through a coil it behaves like a magnetic dipole. तो क्या होगा, ओरिजिनल करंट का जो फ्लक्स है वो नॉर्थ टू साउथ ऐसा जाएगा,
राइट, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और उस कॉइल का फ्लक्स खुद के साथ लिंक्ड है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, और जो करंट इंड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इंड्यूस करंट के लिए नॉर्थ साउथ ऑफ द ओरिजिनल विल बिकम north and north of the original will become south, and it will generate its own flux, and that goes from north to south, right? तो प्रॉब्लम ये हो गया अब कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो ओरिजिनल फ्लक्स को ही अपोज कर रहा है, राइट? लेकिन ओरिजिनल फ्लक्स को यहाँ पर डेवलप तो होना है, स्टैब्लिश होना है, तो ओरिजिनल फ्लक्स को स्टैब्लिश होने में वर्क डन होगा, एंड यू शुड नो the amount of work done in small time dt. if you remember, नहीं याद होगा तो पावर तो याद रखना, power is dw by dt, rate at which work is done, is equal to E into I, correct? so small amount of work done in small time dt, और ये वर्क डन हुआ अगेंस्ट इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि अपोज किसने किया? मैग्नेटिक फ्लक्स, यस। ओरिजिनल करंट के मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टैब्लिश कौन नहीं होने दे रहा था? इंड्यूस्ड करंट। तो वर्क डन इन टाइम dt is ei dt, क्लियर? बट यू रिमेंबर E क्या था? माइनस डी फाइव बाई डी टी, और आपके पास आई डी टी अलग से है, आई डी टी। देयरफॉर dw इक्वल टू माइनस, लेकिन फाई क्या था? L इंटू आई था क्या? L इंटू आई, फाई L इंटू आई, फ्लक्स इज L इंटू आई डी टी। L क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, L को बाहर निकाल लिया, I को भी, I तो वैसे भी डेरिवेटिव के अंदर था नहीं, नॉट दिस वन, ओके। देन यू हैव di बाय dt and dt cancel. So small amount of work done dw is minus li di. We want to find out what is the total work done in establishing the flux of steady current I0. मतलब as I told you कि ये जो बैटरी है इसका टोटल करंट कैपेसिटी अगर I0 होगा, ये वर्क डन है to increase current by a small amount di in time dt. ऐसा करंट स्मॉल अमाउंट में बढ़ते जाएगा एंड फाइनली यू विल हैव मैक्सिमम करंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि किसी भी बैटरी का अगर करंट कैपेसिटी 10 एम्पियर का है, आपने की को क्लोज कर दी तो एकदम से 10 एम्पियर नहीं होता है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इन स्टेप्स। तो I0 इज मैक्सिमम करंट। तो द फ्लक्स लिंक्ड विद मैक्सिमम करंट, उसको डेवलप करने के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए टोटल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर dw फ्रॉम 0 टू I0, दिस इज इक्वल टू, और वेल बाय द वे ऑफ कोर्स आप नेगेटिव साइन छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू I0, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया, li di, और L को भी आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि L कांस्टेंट ही है, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एनीवेज, तो माइनस L आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू I0 I di, and if you know integration it is I square by 2 from 0 to I0, and therefore total work done is minus L I0 square by 2. This is the total work done in developing, in establishing the flux of steady current I0. अगर आप न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हो तो मॉड वैल्यू लोगे तो नेगेटिव साइन को छोड़ दोगे, राइट? यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये है, दिस इज, इस इक्वेशन तक इट इज एनर्जी ऑफ द सर्किट, एंड एज यू नो कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can neither be created nor be destroyed. तो ये जो हमने वर्क डन किया ये कहाँ गया? ये वर्क डन मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप करने में यूज हुआ था, तो ये वर्क डन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टोर हो गया, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गया तो इट अपीयर्स एज एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. So this itself appears as
एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको यू सफिक्स भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब I told you one alternate definition of inductance. ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं I0 की वैल्यू 1 एम्पियर डालता हूं तो मुझे मिलता है वर्क डन इक्वल टू इंडक्टेंस अपॉन 2. Therefore, inductance is 2 into work done. Hence, inductance can also be defined as twice the work done. Twice the work done in establishing magnetic flux ऑफ यूनिट करंट, क्योंकि हमने करंट की वैल्यू क्या ली है 1 एम्पियर। पहले आपने सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन किया था? वी हैव डिफाइंड सेल्फ इंडक्टेंस एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? इंडक्टेंस इज ट्वाइस द वर्क डन, ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ यूनिट करंट, क्योंकि आई की वैल्यू क्या ली आपने 1 एम्पियर। क्लियर? तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में देखा था। नाउ वी कैन गो अहेड विथ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया इज हियर। तो आपको यही इक्वेशन लेना है, you take this equation only, right, and you already have what is the energy density. तो फिर आप क्या बोलोगे? consider a solenoid of length L, cross sectional area A with n number of turns. So there are n number of turns in the solenoid, और ये जो work done हुआ it is stored in the form of energy in the magnetic field. तो पहले हम एक काम करेंगे, we will take a solenoid और हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो आई विल डू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूं, इट विल सेव आवर टाइम। गुड। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है विथ n नंबर ऑफ टर्न्स, n number of turns. What else you have is L is the length of the solenoid, A is area of cross section of the solenoid, और इसमें अगर टोटल करंट I होगा या I0 होगा तो you know what is the energy density. तो let us say, आप चाहो तो I भी ले सकते हो, doesn't matter, you can take I here, कोई फर्क नहीं पड़ता है। So consider a solenoid of length L having and cross sectional area A, of course, and cross sectional area capital A having n number of turns, as shown in figure. Then you can say let I be the current flowing through the windings of the solenoid. Let I be the current flowing through the windings of the solenoid. Right. अब हमें क्या पता है? We know that energy stored in the magnetic field is, अभी इक्वेशन याद हो जाना चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर। जब यहाँ पे I0 लिखा था क्योंकि तब हमने करंट को I0 बोला, अब हम करंट को I बोल रहे हैं, तो I, we know that energy stored in magnetic field is
एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ Li स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? और हमको देखना है व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी that is energy stored per unit volume is, सिंपल है, इसको मैं स्मॉल यू से डिनोट कर रहा हूं। स्मॉल यू मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, सिंपल। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड। क्यों? कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जनरेट हुआ? सोलेनोइड में, राइट? तो एनर्जी कहां स्टोर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कहां स्टोर हुआ? सोलेनोइड में। तो फिर आप क्या करोगे? टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विल गिव यू एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी तो आपको पता ही होगा ना, समथिंग अपॉन वॉल्यूम, समथिंग अपॉन एरिया, राइट? जैसे अगर आप मास डेंसिटी की करते हो तो पर मीटर क्यूब में कितना मास है, वैसे ही पर मीटर क्यूब में कितना एनर्जी है। दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो ये आ गया आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर और वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड इज लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर यहां तक? वेल, बट इफ यू रिमेंबर, मैंने रिवीजन इसके लिए लिया था सो दैट आपको हर एक इक्वेशन याद होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर, L by L, inductance per unit length, we have just derived it again, mu 0 n square A. So inductance per unit length is mu 0 n square A. Therefore energy density UB equal to half L by L के जगह पे हम लिखेंगे mu 0 n square A, and here you will have I square by A, cancel and cancel, right? तो आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 mu 0 n square I square। तो ये एक इक्वेशन है which gives you एनर्जी डेंसिटी। और आप एक काम कर सकते हो, what you can do is आप ऐसा भी कर सकते हो, म्यू 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। म्यू 0 और मल्टीप्लाई से डिवाइड, म्यू 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके लिए किया क्योंकि अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड होता है म्यू 0 एन आई, और यहाँ पे आ गया म्यू 0 एन आई का स्क्वायर। म्यू 0 स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब म्यू 0 एन आई का स्क्वायर। और आपको पता है what you know is mu 0 ni is magnetic field at the center of solenoid. So since mu 0 ni is b, तो ये आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी का दूसरा इक्वेशन इन टर्म्स मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ऑलवेज बेटर। क्यों बेटर? क्योंकि हम बोल ही रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे बेटर क्या हो सकता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड खुद आ गया बी, राइट? So this is the equation for energy stored in energy density of a magnetic field, b square upon 2 times of mu 0. Clear यहाँ तक? It is very similar to energy stored in an electric field, energy density of electric field. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, नहीं याद होगा तो आज जाके चेक करना, आपको ऐसा इक्वेशन दिखेगा जो दिखना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। सेम ही आता है, सिर्फ नीचे आता है म्यू 0 और E की जगह पे आता है B। तो यू हैव टू गो एंड चेक। डन? क्लियर यहाँ तक? इज दिस गुड? सिंपल है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर EMI। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम
कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस समझना है तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस पता होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? यू रिमेम्बर, सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल था। व्हेन द करंट इन द कॉइल वाज चेंजिंग, EMF was induced in the same coil and this phenomena was called as self induction. यहाँ पे म्यूचुअल जब आप बोलते हो तो यहाँ पे आपके पास दो कॉइल है, तो यू हैव टू कॉइल्स विच आर केप्ट नियर टू ईच अदर, तो यू हैव टू कॉइल्स, तो दो कॉइल दिखा देंगे। और ऑलरेडी हमने ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देखा ही है, आपके पास दो कॉइल थे, एक कॉइल के साथ आपने रियोस्टैट, बैटरी और की कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर रियोस्टैट नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, बट बैटरी एंड की इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू शो। So you have a coil with a battery connected and a key connected. This coil is called as primary coil. Very good. Then you have a secondary coil. Secondary coil में सिर्फ एक galvanometer है, that's it, right? तो अब whenever there is change in current in the primary coil, the flux of the primary coil changes and the flux of the primary coil is linked with the secondary coil, and hence EMF is induced in the secondary coil. This phenomena is called as mutual inductance. तो करंट चेंज हुआ एक में और करंट इंड्यूस हुआ दूसरे में, खुद में तो हुआ ही, खुद में हुआ तो सेल्फ इंडक्टेंस था, हमने देख लिया। मतलब दोनों होता है, खुद में भी होता है और नेबरिंग कॉइल में भी होता है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हेन वन कॉइल इज केप्ट नियर टू अनदर कॉइल, इफ द करंट इन one coil changes, then the EMF is induced in the neighboring coil. This phenomena is known as mutual induction. So when one coil, या फिर when two coils are kept near to each other, when two coils are kept near to each other, and if near to each other, and if current in the one coil changes, then EMF is induced in the neighboring coil. This phenomena is known as mutual induction. इस phenomena को आप बोलते हो mutual induction, right? अब before we derive formula for mutual inductance, आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसको प्राइमरी बोला, किसको सेकेंडरी बोला। तो द कॉइल which is connected in series with source of EMF, मतलब बैटरी, and key is known as primary coil, and the coil which is connected only with a galvanometer is known as secondary coil. तो पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा the coil which is connected in series with किसके साथ? source of EMF, नहीं तो बैटरी भी बोल दोगे तो चलेगा, बैटरी and a key, the coil which is connected in series with the source of EMF and a key is known as primary coil, denoted by P. Similarly, the coil which is connected
which is connected in series with a galvanometer is known as secondary coil, denoted by S. क्लियर यहाँ तक? अब इसके आगे क्या होगा? एंड आई विल सिंपली स्टिक द नोटिस योर बुक. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जब भी प्राइमरी में करंट चेंज होगा, और करंट इन द प्राइमरी इज डिनोटेड बाय IP. So whenever there is change in the current in the primary IP, the magnetic field and hence the flux of primary, जिसको हम नोट करेंगे, B1 is the magnetic field, phi1 is the flux. किसका फ्लक्स है? प्राइमरी का. होगा ये जब भी प्राइमरी में करंट IP चेंज होगा, तब प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा. बट ये फ्लक्स के साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. Hence an EMF will be induced in the secondary. So when the current IP in the primary coil changes, the magnetic field B1 and hence the flux, the magnetic field B1 and hence the flux phi1 of the primary changes. This flux, कौन सा फ्लक्स? phi1 is linked with secondary, and hence an EMF is induced, in the secondary coil. अब आप चाहो तो इसको phi P भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको phi S भी बोल सकते हो. I'll just call this as phi1. तो याद रखना, प्राइमरी का जो भी फ्लक्स होगा, इट इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी. सेकेंडरी तक जो फ्लक्स पहुंच रहा है उसको मैं बोलूंगा फाई. क्यों? क्योंकि नॉट नेसेसरी ना कि phi1 मतलब पूरा का पूरा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इट्स नॉट, मे बी 50% इज लिंक्ड, मे बी 20% इज लिंक्ड. तो सेकेंडरी का जितना है, सेकेंड तक जितना फ्लक्स पहुंचा उसको मैं बोलूंगा S. राइट? इज दिस क्लियर? तो फ्लक्स लिंक सेकेंडरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी. क्योंकि प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, तो प्राइमरी का फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी. मतलब सेकेंडरी पे जितना फ्लक्स पहुंच रहा है, इट इज ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी. राइट? तो ये याद रखना, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी इज गिवन बाय flux linked with the secondary coil is proportional to current in the primary. सेल्फ इंडक्टेंस में हमने ऐसा कुछ नहीं बोला. सेल्फ इंडक्टेंस में हमने बोला फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि एक ही कॉइल था, खुद का ही करंट, खुद का ही फ्लक्स. तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल is directly proportional to current in the coil itself. लेकिन यहाँ पे flux linked with the secondary coil is proportional to current in the primary. प्राइमरी का करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ेगा, प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ेगा तो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है तो सेकेंडरी का फ्लक्स बढ़ेगा. इज दिस क्लियर? पक्का? गुड. आर वी गुड? ओके. रिवीजन नहीं करोगे तो देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. फिर ये चैप्टर कभी नहीं समझ में आएगा. If you do not revise, then I am sorry to say it is difficult.
तो जैसे वहां पे आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को L लिखा था, यहाँ पे आप लिखोगे M, where M is coefficient of proportionality called as mutual inductance or coefficient of mutual induction, right? Where capital M is constant of proportionality, constant of proportionality known as mutual inductance, mutual inductance or coefficient of mutual induction. क्लियर यहाँ तक? अब if the current in the primary changes, then flux linked with the secondary also changes, and hence an EMF is induced in the secondary. If current in the primary IP changes, hence flux linked with the secondary also changes. Thus an EMF is induced in the secondary coil, which is given by ES, क्योंकि EMF किसमें इंड्यूस हुआ? सेकेंडरी में. व्हाट इज बाय डेफिनेशन? माइनस डी फाई बाय डी टी, लेकिन किसका फाई? सेकेंडरी का फाई. यहाँ पे प्राइमरी मत लिख देना. दिस इज फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी. ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई एस. बट व्हाट इज फाई एस? MIP, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी. देयरफॉर ES equal to minus M DIP by DT, right? अगर मैं मॉड वैल्यू की बात करूं, if you talk about mod value, the magnitude of EMF induced in secondary is mutual inductance into DIP by DT. Therefore, mutual inductance M is equal to ES upon DIP by DT. If you remember, मैंने बताया म्यूचुअल इंडक्ट जब सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही थी, तो I told you it is a ratio of self induction. It is a ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil. यहाँ पे देखो, ऊपर है F, मतलब EMF is induced in the secondary coil. नीचे है IP, मतलब current is changing in the primary coil. तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसको आप बोलोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is the ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change of current in the another coil, right? So this is how you can define. Thus mutual inductance can be defined as the ratio of EMF induced in one coil, या फिर in the secondary coil भी बोल सकते हो, in one coil to that of rate of change of current in the other coil. बाकी एस्टिमेट तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये वोल्ट है, ये एम्पियर पर
सेकेंड है ये ऊपर जाएगा, वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर, बट वोल्ट एम्पियर अपॉन एम्पियर इज ओहम, तो ओहम सेकेंड इज हेनरी, तो ऐसा यूनिट इज हेनरी। तो ऐसा यूनिट ऑफ mutual inductance and self inductance, they are same. Dimensions of mutual inductance and self inductance are same. So SI unit is Henry. SI unit of M, this is of course, as I told you, it is volt upon ampere per second, मतलब volt second per ampere, मतलब ohm second, मतलब Henry. I will leave it on to you. First time dimensions you are supposed to work. Something I should leave it on to you to do. अब अगला है coefficient of coupling between circuits. Topic. तो coefficient of coupling. Coefficient of coupling. इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं हम लोग, K between the circuits. Between the circuits या फिर between the coils is the same thing. So same idea है, you have again this diagram. Okay. तो coefficient of coupling आपको बताता क्या है? देखो ये एक पैरामीटर है which basically tells you कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. सिंपल. So coefficient of coupling is the measure of portion of flux of primary which is linked with secondary. Right? या फिर आप बोल सकते हो coefficient of coupling is the measure of portion of flux of coil 1. इसको coil 1 भी बोल सकता हूं मैं, which is linked with coil 2, है ना. तो प्राइमरी को बहुत सारे बुक्स में coil 1 बोला है और सेकेंडरी को बहुत सारे बुक्स में coil 2 बोला है, एक ही बात. So you can define coefficient of coupling. Coefficient of coupling K is the measure of the portion of flux of primary मतलब 1 number coil of primary which is linked with secondary, which is number 2 coil. मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था कि नॉट नेसेसरी कि जितना फ्लक्स प्राइमरी जनरेट कर रहा है पूरा का पूरा सेकेंडरी के साथ लिंक्ड हो. इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, 100%. राइट. हम देखेंगे 100% लिंक तो उसको हम क्या बोलते हैं, और 50 से 100% के बीच में है तो क्या बोलते हैं, और 50 से कम आया तो क्या बोलते हैं. इट हैज सम नेम. के को कुछ नाम दिए हमने, के मतलब we'll see that. Okay. Anyway, अब I will again follow the notation of your book. Simple है. जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा किसका, प्राइमरी का, किसके साथ, सेकेंडरी के साथ, उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. और जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा इन द सेकेंडरी. तो greater the value of K, greater is the mutual inductance, which means greater is the EMF induced in the secondary. Higher the value of K, greater is the mutual inductance, मतलब ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड है. So higher the value of K, greater is the value of mutual inductance and hence higher is the induced EMF
in the secondary. That is coil number 2. Therefore, what you can say is mutual inductance is directly proportional to E21. What is E21? E21 is EMF induced in secondary due to flux of primary, right? So where E21 is the EMF induced in the secondary due to flux of primary. And as I told you, primary matlab 1 and secondary matlab 2. Is this clear up to this point? Pakka? Sure. Then, agar aapko yaad hoga, you should keep on remembering this thing again and again. E21 is flux. But if you remember, flux linked is directly proportional to number of turns. फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी. तो टर्न्स किसके? सेकेंडरी के. फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है? प्राइमरी. तो फ्लक्स किसका? प्राइमरी. करेक्ट. देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको रखना पड़ेगा. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, ये प्राइमरी है और क्योंकि ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी जनरेट कर रहा है फ्लक्स और आपके पास सेकेंडरी है. अगर मान लो सेकेंडरी के पास 2 ही टर्न्स है तो लेस फ्लक्स इज लिंक्ड, मतलब लेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. सिंपल केस. मान लो अगर इसके पास टर्न ज्यादा होंगे, किसके पास? सेकेंडरी के पास, तो मोर फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी, मतलब मोर phi1 इज लिंक्ड विथ N2. तो N2 phi1. ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी में. तो जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंडरी के साथ उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. लेकिन फ्लक्स लिंक किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे. तो दैट इज व्हाई N2 किसका N2 का, Q2 का, क्योंकि ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? फ्लक्स किसका है? प्राइमरी का. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट. but do you remember flux of the primary, flux of first coil is itself proportional to number of turns in the primary. अब ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, मान लो मेरे पास एक कॉइल है जिसमें 2 टर्न्स, जो करंट है वो 2 ही राउंड, मतलब 2 टाइम्स इट पासेस. एक बार जब पास हुआ, एक टर्न से पास हुआ, तो एक टर्न ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर दिया. फिर दूसरे टर्न से पास हुआ तो सेकंड टर्न ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया. तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, इट इज एडिशन ऑफ फील्ड जनरेटेड बाय ईच टर्न. अब ऑब्वियस है जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा. तो देखो क्या है, अगर मेरे पास प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, कि करंट ज्यादा बार सर्कुलेट हो रहा है ना, पहली बार पहले टर्न से, फिर दूसरे टर्न से, फिर तीसरे टर्न से, फिर चौथे टर्न से, फिर पांचवें टर्न से, फिर 6 टर्न से, राइट. तो हर बार जब एक टर्न में जाता है तो फील्ड जनरेट होता है. ये तो फील्ड तो वैसे भी जनरेट होता है, लेकिन जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, मतलब वही करंट उतने ज्यादा बार सर्कुलेट होगा, मतलब उतना ज्यादा फील्ड होगा और उतना ज्यादा फ्लक्स होगा. तो प्राइमरी का खुद का फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे. किसमें नंबर ऑफ टर्न्स? प्राइमरी में. अब हम सेकेंडरी की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. लिंक बनाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज यू आर गॉन. यू हैव टू इमेजिन, यू टू सी, अंडरस्टैंड थिंग्स. EMF induced in the secondary due to flux of the primary. Mutual inductance M is directly proportional to E21, where E21 is EMF induced in the secondary due to flux of primary, right? But E21 is proportional to N2
क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन कितना फ्लक्स लिंक्ड रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, किसके? सेकेंडरी। और किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी। लेकिन फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी डिपेंड करता है कि वो करंट कितने बार टर्न्स ले रहा है, राइट? तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी के, उतना ज्यादा प्राइमरी का फ्लक्स होगा। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, from equation number 2 and 3, E21 is proportional to N2 and phi1 की जगह पे N1, equation number 4. Therefore, from equation number 1 and 4, mutual inductance which was proportional to E21 is now proportional to N2 into N1. क्लियर? यहां तक क्लियर? इसमें सिर्फ इक्वेशंस ही है, ज्यादा कुछ लिखना है ही नहीं आपको, ओनली इक्वेशंस। क्लियर यहां तक? नाउ लेट अस गो बैक टू दिस इक्वेशन, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट? तो आप इस इक्वेशन से देख रहे हो L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस is n square small l, where small l is length of the solenoid, mu 0 a, right? तो L equal to n square l square mu 0 a by l से मैंने L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बट व्हाट वाज n into L? कैपिटल N। वेरी गुड। तो n इक्वल टू कैपिटल N स्क्वायर म्यू 0 a बाय L। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना? एक बार सोलेनॉइड बना लिया आपने, एरिया चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। लेंथ चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यहाँ पे सेकेंडरी की बात ही नहीं है, यहाँ पे सेम कॉइल। वेरी गुड, गुड। देन बट what you can say, but we know that we know what? We know that L is proportional to n square, therefore root of L is proportional to n, या फिर therefore what you can say is n is proportional to root of L, therefore n2 is proportional to root of L2 and n1 is proportional to root of L1, where L1, L2 are self-inductances of primary and secondary. Even though secondary में करंट खुद का नहीं है, लेकिन उसका सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा। अगर मैं उस सेकेंडरी कॉइल को बैटरी लगा देता तो उसमें खुद का इंडक्शन होता, अगर लगाता तो। अगर मैं गैल्वेनोमीटर हटा के बैटरी लगा देता, राइट, तो बैटरी लगाते तो इसमें खुद का करंट होता, तो फिर वापस से आ गए आप यहाँ पे, राइट? तो कॉइल अगर है तो कॉइल का खुद का इंडक्टेंस होता ही है, राइट? गुड। तो ये पता होना चाहिए। तो वेयर L1 एंड L2 आर सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ कॉइल 1 एंड कॉइल 2, वेयर L1 and L2 are self inductances of primary and secondary, मतलब of coil 1 and coil 2। क्लियर यहाँ पर? जो इक्वेशन आपने लिखा है 6, इक्वेशन 5 and 6 से आपको क्या मिलेगा? Therefore from equation number 5 and 6 what you get is, what do you get is, what do we get is M is proportional to N2 into N1, but N2 is proportional to root of L2 and this is root of L1. Therefore, M is equal to some constant of proportionality K, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, अरे टॉपिक का नाम क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया है कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वेयर K is constant of
proportionality known as coefficient of coupling. Done. अब स्पेशल केसेस मतलब वैल्यूज बेसिकली. तो नंबर 1, इफ k equal to 1, अगर coefficient of coupling value 1i, then the two coils are said to be perfectly coupled. मतलब जितना फ्लक्स पहले ने जनरेट किया पूरा पूरा सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. तो if k equal to 1, then the two circuits or two coils are said to be perfectly coupled. Which means of course the flux of primary is with secondary, right? तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, वो आपको पता होना चाहिए. नंबर 2, k की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, then the two coils are said to be tightly coupled. Not perfectly but tightly. So if you have this case, then the two coils are said to be tightly coupled. They are not perfectly coupled but they are tightly coupled. Number 3, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0 से तो कम हो नहीं सकती, याद रखना. इफ द वैल्यू ऑफ k is between 0 and 0.5, या फिर you can just say less than 0.5, then the two coils are said to be loosely coupled. मतलब इसमें जो कपलिंग है वो लूज कपलिंग है. इट इज सेड टू बी लूजली कपल्ड. क्लियर यहां तक? गुड. तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द सर्किट्स बहुत इजी टॉपिक है. इट जस्ट टेल्स यू हाउ मच फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी, राइट? फिर आपको पता होना चाहिए कि जितना वैल्यू ऑफ k ज्यादा होगा उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा मतलब उतना ही ज्यादा EMF इंड्यूस होगा किसमें? सेकेंडरी में, ड्यू टू फ्लक्स ऑफ प्राइमरी. तो n प्रोपोर्शनल टू E2, बट E21 EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी ड्यू टू फ्लक्स ऑफ प्राइमरी is N2 into phi1, but phi1 itself is proportional to N1, therefore A21 is proportional to N2 into N1, but mutual inductance is proportional to A21, hence mutual inductance is proportional to N2 into N1, but N number of turns is proportional to under root of self inductance, hence N2 is proportional to root of L2 and N1 is proportional to root of L1, where L1 and L2 are self inductance of phi1 and 2. So equation 5 कंबाइन कर दिया तो मिल गया m is proportional to under root of L2 into L1. प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दी तो कांस्टेंट लिखोगे, where k is called as constant of proportionality, which is known as coefficient of coupling. If k equal to 1 आता है, then they are called, the coils are said to be perfectly coupled. अगर की वैल्यू 0.5 से 1 आती है, then the coils are said to be tightly coupled. If k की वैल्यू less than 0.5 आती है, तो then they are said to be loosely coupled. Clear? Is this clear? यहाँ तक clear? Okay. So one last theory topic is remaining, and that is transformer. So we will do that in the next session, and we'll start with numericals. That's it for today.